ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸਨ ਸੋਏ, ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਝ ਨਾਵੇ ਲੇਖੇ ਕੀ ਵਿਦੇ, ਰਹਿਓ ਜੋਰ ਹੋਵਤ ਨਹਿ ਸਿੱਧੇ। ਤੀਨ ਜਾਮ ਜਾਮਣ ਥਿਤ ਗਈ, ਗਿਣਤ ਮੰਦ ਮਤ ਤਿਆਗ ਨ ਦਈ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋਂ ਜੋਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਾਜਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੁਝ ਨਾਵੇ ਲੇਖੇ ਕੀ ਵਿਦੇ, ਰਹਿਓ ਜੋਰ ਹੋਵਤ ਨਹਿ ਸਿੱਧੇ। ਕਵਿਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਚਦਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਧੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਨ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਘਰ ਸੰਨ ਲਾਈ। ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਘਰ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚਬਾਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਣੀਆ ਉਹਨੇ ਲਾਲਟੈਨ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ, ਫਿਰ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1 ਟਕਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀਆ 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਨ ਜਾਮ ਜਾਮਣ ਥਿਤ ਗਈ, ਗਿਣਤ ਮੰਦ ਮਤ ਤਿਆਗ ਨਾ ਦਈ। ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ 36 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਸੌਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ। ਜਾਗਤ ਇਸਤਰੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈ, दूध कटोरा भर कर सोई। हुण घर वाली भी जागती रही, क्योंकि नाले हिसाब ताब करे, नाले लालटन जागती सी, नाले बार बार खंघी जाए। घर वाली जागती जागती वो व्याकुल हो गई कि कदे नींद पैंदी, कदे उठ जाती है। वो दुध का एक कटोरा लैके आई, टिक होए कह समझावन काज, खाए न पियो तैं किस आज। उस लाले के नेड़े हो के उनके घर वाले ने कहा कि तू अज ना कुछ खादा है ना कुछ पीता, ज्यों शाम का बैठा वही खादा लैके इनू छड्डदा ही नहीं पिया। आ दुध लैके आई, दुध ते पी। जे अब तुझ ते जाए ना देखा, त्याग दे हो पुन कीजे लेखा। कि लाला जी जे लेखा हिसाब होण उस हिसाब विच नहीं आउंदा, समझ विच नहीं आउंदा ते छड्ड दे, दफा कर। सवेरे उठ के फिर वेख ली, फिर मत्था मार ली। सुनत बाग को रसते राचा, निज स्त्री को हतस तमाचा। और खिजिया होया बंदा जदों फिर कोई आके भावें सियाणी गल भी कहे ना, होर खिजदा है। हिसाब तो पूरा नहीं सी हो रहा, जिहड़ा 10 मिनट का काम सी 3 पहर रात दे लंघ गए, सारी रात ही लंघ गई जी, अमृत वेला हो गया। जदों घर वाली ने कहा कि दफा कर, सवेरे वेख ली, सौ जा हुण। कहते इन्ना गुस्से विच आया कि घर वाली दे उन्हें तमाचा थप्पड़ मार दिता। भई क्रोध तर घेर कटोरा, दूध बिथारियो पत की ओरा। हुण घर वाली जदों वज्या थप्पड़, फिर वो भी गुस्से में आ गई। दुध का कटोरा जिन्होंने पीण वास्ते देना सी, इहदे वल पैरां ते सुट के ना वगा के मारिया कि नहीं पीना तो दफा हुआ फड़। दुध सारा थले डुल गया। कहो शोम तो भयो महाने, देव पितर किसहू नह माने। ते नाले कहते तू इन्ना कंजूस है, मक्खी चूस पूरा, ना तू किसी देव नूं मन्ने, ना पितर नूं मन्ने, ना उन्हां दे नां ते कदे रुपईया कढे, ना कदे पुन करे, ना दान करे। एक दमरे पर रात गुजारे, समझो ते रिस कर मारे। कि एक दमड़ी 1 रुपये पिछे सारी रात तू गवा दी है। 1 रुपये का हिसाब तो नहीं ना मिलता पिया। समझायो ते रिस कर मारी, जे मैं समझाया चंगी गल कही तो तू थप्पड़ ही मारे। इम कह रुदत होए दुखियारी, सुपते जाए नींद ले भारी। इस तरह कह के नाले उनके घर वाली दे अखां चों पानी भी आया, कोई थप्पड़ मारिया, नाले खिजी हुई गई कि तू दफा हो, नहीं सौणो ते ना सौ। वो जाके सौ गई, क्योंकि रात सारी रात इन्हें खराब की, पैंदे नाल नींद आ गई, गूढ़ी नींद आई। भई कल है बणिए दुख पायो, तजी वही तेह ठां सुपतायो। हुण घर दे विच कलेश होवे ते हिसाब तो पहलों ने समझ लगता होए तो फिर कित्थों लगना सी। बाणिया भी दुखी होया, वही बंद करके उन्हें वगा के पर मारी, जल सवेरे वेखांगे। वही उत्थे एक पासे रख के उत्थे सौ गया, बस माड़ा जिहा टेढ़ा होया, सारी रात दा जागदा सी। पैण दे डेर वो भी सौ गया। जब दोण कहो सुध नह रही, दुर्यो एक थल मैं सब लही। कि जदों दोवां नूं वेख्या कि हुण इन्हां नूं कोई सुध नहीं रही, ते रात दे सारी रात दे जागदे ने, हुण इन्हां उठना भी कोई नहीं छेती। गूढ़ी नींद सुते ते भाई बिधि चंद कहते मैं लुक के वेखदा रहा, सारी रात इन्हां मेरी भी खराब कीती।
जाए चबारे मह बर गयो, धरियो संदूख निहारत भयो। भाई बेदी चंद कहता मैं चबारे च वड़ गया जिथे लाला हिसाब किताब करी आउंदा सी। उन्हें संदूक कोल रखिया सी, मैं संदूक नूं देखिया। कर बल को बहु तोरियो तारा, ताके खोल बेच कर डारा। कर बल हत्थां दी ताकत नाल मैं ताला खोलिया, क्योंकि उत्थे थौड़ी मारदा फिर तो उठ जाना सी। खड़क नहीं होण दिता हत्थां ते जोर नाल ही। और किन्ना कुछ जोर होएगा उदों कि माड़ा जो उन्होंने मरोड़िया, बस एक पासे टेढ़ा किया, ताला टुट गया। संदूक दे विच हथ पाया, थैले धन के लाग सहाथ, लैकर मैं तुरनता साथ। बस संदूक पूरा खोलिया नहीं, क्योंकि दो ताले सन। एक पासे तोड़िया, माड़ा जिहा चुकिया, हथ पाया, हथ पै गया। हथ पाया, एक थैली जिहड़ी धन दे रुपइयां दी भरी हुई हथ लग गई, जिंदे घट्टो घट्ट 500 रुपया होएगा। निकस्यो वहर गयो घर तिनके, दीर्घ दारद हुतो सो जिनके। कि माता जी मैं उत्थों निकलिया तो फिर उन्होंने घर पहुँचे जिथे बड़ी गरीबी सी, जिन्होंने मैं पहलों रोटी तो विआह दे विचों चोरी करके दे आया सा, बहुत सारिया मिठाइयाँ दे के आया सा। उस घर विच पहुँचया, सुपत परे दंपत को देख, करे जगावण दुखी परेख। क्योंकि उन्हें भी कई दिन बाद रज के रात प्रसादा छकिया सी। घर दे विच क्या तो वह भी सुते पे कूक गूढ़ी निंदरे। और जिन्हों वास्ते जेडे दुखी सन, बाबा बेदी चंद जी सारी रात तुरते फिरते वो सुते हुए ने। कहते जाके जगाया, हुण उठो। सर्ब दर्ब को दे कर आयो, श्री अर्जन को आन सुनायो। जिन्ना तार उतों लिया सा मैं सारा उन्होंने दे के आ गया कि इनके नाल जे ज़्यादा नहीं तुहाडी धी का विआह भी हो जाना है, तो तुहाडा 6 महीने का राशन पानी भी वधिया चलेगा। ये कहते सारा कुछ आके भाई बिधि चंद जी कह रहे हैं, मैं आके अपने गुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी को दस्या भी कि अज इस ढंग नाल चोरी की, पर चोरी की किसे वास्ते। गुर प्रसन्न मन सिर कर धरियो, करियो लेख चोरी अब टरियो। इत्थे सतगुरु जी ने कहते भाई बिधि चंद कहते मेरे ते फिर कृपा की कि बिधि चंद ये चोरी का तो लेख ही तेरे सिर लिखा होया सी। और ये लेख जड़े ने कुछ वो ने जड़े तुर तो लिखे होंदे ने, कुछ वो ने जड़ा बंदा अपने कर्मा करके आप लिखता है। पर अज गुरु साहब जी ने कृपा की, कहते ये लेख भी तेरा जड़ा लेखा हुणे भी मिट गया। परोपकार ते कर रहे हैं। गुर करके बहु काज सुधारे, आप तरह आवरण को तारे। हुण चोरी वाला लेखा तेरे सिर ते नहीं रहा, ये मिट गया। पर किवें मिट गया? देखो सतगुरु जी ने बाणी दे विच कृपा की, पहलों आप जी नाल बचन साझे भी किए। कहते एक महापुरुष को एक माई आई, तो आके रोवे जी कि मैं तो पाप ही बड़े किते ने। हुण महापुरुषों का समझाउण दा ढंग सी। कहते माई पाठ करनी है, कहते पाठ भी करनी है, पर पाप भी करनी है। कहते जिन्ने पाप किए थे लीका खिंच दे, 1 2 3 4 कई लीका खिंच दी उन्हें जी। पूछा कि सारिया लिखा लिख दित्तियां, लिखा कढ़ दित्तियां जिन्ने पाप किए? कहते नहीं हजे कुछ याद नहीं आए। कहते चल कल नूं याद करके आई, फिर होर कढ़ी। अगले दिन फिर आई, ज्यों लगे लिखा किड्डण, किन्ने थां फिर भर दिते, कई लिखा फिर कढ़ दित्तियां कि पाप को थोड़े जे थोड़े सानूं गुरु साहब तो कहते समुंदर जिन्ने पाप ने। कहते सारियां कढ़ दित्तियां, कहते हले भी कुछ चेते नहीं आए। कहते कल फिर आई, कल फिर आई, उदों वध कर अगले दिन फिर कढ़ दित्तियां कि जिन्ने को चेते आए सो उन्नियां लिखा तो खिंच दित्तियां। उत्थे महापुरुषां ने कहते हथ मारे सारियां लिखां दे उत्ते, कहते लेख तेरे मिट गए ने। और गुरु साहब तो सानूं समझाउंदे ने, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एक सिख आया सी ने इसे तरह समझाया सी
कि सतगुरु जी तुसी गुरबाणी की कथा करके सुना रहे सो, कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। सतगुरु जी मैं जानना भी है, समझना भी है कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, पर सुभाव ही ऐसा बन गया, पता भी लग जाता कि झूठ हुण बोलन लग्या पर रुकिया नहीं जाता, झूठ फिर बोलिया जाता है। और तुसीं देखो हुणे कोई ना कोई जीवन च ऐसा मिल ही जाता है कि जिहड़ा बंदा बिना ही मतलब हर गल ते झूठ बोलदा, जिंदा कोई मतलब ही नहीं। सतगुरु कहंदे ने भाई जे झूठ बोलना ना कोई गल नहीं, ये भी मिट जाएगा। तू जे पाठ करने का मतलब तू पढ़ तो लेना ही, कहता सतगुरु जी पढ़ भी लेना लिख भी लेना, घर विच भांडे भी होणगे, सतगुरु जी तुहाडी किरपा नाल बड़े ने। सतगुरु कहते हैं बस हुण जाई घर, एक भांडा ला ली खाली, सवेर तो लैके शाम तक जिन्ने को वारी झूठ बोले, जिन्ने को चेते रह जाण शाम, जिन्ने पाप किते। और पाप वो हुंदे ने जिहड़े माड़े विचार मन विच आउण, किसे दा धन वेख के, किसे दा तन वेख के, जां किसे भी तरह का विकार अंदर आवे तो उस कागज़ ते लिख के कागज़ रोज़ पा देना है, एक महीना करके वेख। और मैं कई बार बेनती भी की, सानू गुरमत कालजां विच डायरियां लवाइयां भी जांदियां सन कि अपनी डायरी रोज़ लिख लिया करो, आप ही पढ़ लिया करो। हुण वो गल तो वखरी ना लिखनी असी आप है, उहदे च भी की लिखना तो की नहीं, ये भी फिर आपो अपनी मर्जी हो जाती है। पर उस सिख के अद्धे पाप तो उदों ही कट्टेगा जो ये क्या कि लिखना है। कई बार बंदा लिख के आप ही जो पढ़ता शर्मशार होंदा है, अद्धे पाप तो उदों ही कट्टे गए। जदों महीने बाद आया, गुरु साहब जी कहते वो कागज़ वाली लिया चिट्ठियाँ, संगत में पढ़ के सुना। हुण गवांढी भी उत्थे बैठे होणगे, जिहड़े गवांढी बारे माड़ा सोचा होएगा वो भी लिखिया, जिहड़े नूं अपने समझते होणगे उन्हां बारे किवें दे ख्याल आए होए वो भी लिखे होणगे, पढ़ के सुनाए। और नाले धरती वेल ना दवे। सतगुरु कहंदे अगले महीने फिर लियाई, अगले महीने उहदे नालों तीजा हिस्सा भी नहीं कागज़ रह गए। सतगुरु जी कहंदे अगले महीने फिर लियाई खाली भांडा। माड़ा विचार अंदर आया नहीं कि संगत में पढ़ के सुनाना। और देखो गुरु साहब तो विधि ढंग नाल समझाउंदे ने, ते भाई जे जीवन में सुधार करना होए तो क्यों नहीं हो सकता। ना किसी नूं सुनाइए, ना किसी नूं पढ़ाइए, ना ही लिखिए, कल्ले आके गुरु ग्रंथ साहब जी कोल ते मन लिया ना कि साडे अंदर ये कमजोरियां ने, ये पाप ने, कृपा करो आपे कट्टे जाणगे। भाई बिधे चंद कहते हो तो गुरु साहब जी ने मेरे पिछले सारे पाप कट दिते। और कट्टे तां ही जांदे ने जदों गुरु साहब जी फिर अगों हुक्म करते हैं कि पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ, आगे मार्ग पावै। सतगुरु कहते ने उदों मेरे ते कृपा की। भाई बिधे चंद कहते गुरु साहब जी कहते अज तो बाद फिर चोरी ना करी, क्योंकि चोरी तो चोरी है, अज तो बाद चोरी ना करी। गुर घर के बहु काज सुधारे, आप तरह अवरण को तारै। हुण तू गुरु घर आ जा, गुरु घर विच आके गुरु घर दे कारज कर, इत्थे सेवा कर, ते इस सेवा विच करके आप ते तू तरेंगा, होर कईयां नूं तार लेंगा। इम सतगुरु को बर है मोही, बड़े भाग कर मिल बोही। इस तरह भाई बिधि चंद कहंदे माता जी ये मैनू गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एक तरह दा वार ही दिता कि चोरियां भी छड़ाइयां, सुभाव भी बदलिया, तो ये कह दिता आप दे तरेंगा, होरां नूं तारेंगा। और भाई बिधि चंद दी वो अंश-वंश अज भी चलती है, एक उन्हां दी संप्रदा चलती भाई बिधि चंद के नाम से। करे कृपा गण पाप निवारे, अपने चरण लाए निस्तारे। इस तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने मेरे ते कृपा की, पिछले पाप कट दिते, अगे तो समत दी, अपने चरणों नाल लाया। उस दिन तो मैं चोरी भी छड्डी, अपना घर बार भी छड्डिया, मैं गुरु के चरणों में आकर रहन लग गया। सुन गुर पत्नी अचरज लहियो, साध साध विद्ये क्यों कहियो। क्योंकि कहानियाँ सारियां अचरज सन, हैरान करने वालियां। माता दमोदरी जी, माता नानकी जी सुनते ने बड़े हैरान होंदे ने, नाले साध साध विद्ये को कहियो। कहंदे ने भाई बिधि चंद शाबाश,
ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਬੈਠਿਓ ਦਰਸਾਇਓ, ਪੁਨ ਉੱਠ ਕਰ ਨਿਜ ਥਲ ਚਲੇ ਆਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਏ, ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਏ ਆਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗੀ, ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਗੇ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠਾਣ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਬੈਠੇ ਪੁਣ ਦੀਵਾਨ ਗਣ ਸੂਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਲਾਗਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਏ ਪੰਕਜ ਕੇ ਪਾਗਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲੂ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ। ਜਬ ਗੁਰ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਕਿਤੂ ਸਿਧਾਵੈ, ਅਗਰ ਤੁਰੰਗਮ ਦੌੜਿਓ ਜਾਵੈ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਬਾਲੂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਨ ਮਾਨੇ ਦੂਰ ਸਿਧਾਰੈ, ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰ ਜਹਾਂ ਪਧਾਰੈ। ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਕੋਹ ਜਾਣਾ, 4 ਕੋਹ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ 10-12 ਕੋਹ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਦੌੜਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਤੇ ਥੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਕਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਮੁਖ ਹੇਰੇ, ਹੱਸੇ ਅਧਿਕ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਕਨੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੱਸਮੁਖ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬੈਠਤ ਚਲਤ ਸਮੁਖ ਜਬ ਹੋਏ, ਹੱਸੇ ਬਦਨ ਤੇ ਹਰਖਤ ਸੋਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੱਸਣਾ, ਮੁਸਕਰਾ ਦੇਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਹੱਸ ਪੈਣਾ। ਧਰਿਓ ਨਾਮ ਤਬ ਗੁਰ ਨਿਜ ਰਸਨਾ, ਭਇਓ ਆਜ ਤੇ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲੂ ਬਾਲੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਭਾਲੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਲੂ ਨਾਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲੂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਤਿਸ ਕੋ ਗੁਰ ਕਹੋ, ਅਬ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਹੱਸਣਿਆ, ਹੱਸਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਿਓ ਬਾਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਰੰਗ, ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਸੰਗ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਹੱਸਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਚੜੇ ਵਹਿਰ ਤਬ ਆਗੇ ਧਾਵੈ, ਜਹ ਪਹੁੰਚੇ ਚਲ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਵੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ।
जिथे जाते ने उत्थे नाल ही जाता है। एक दिन श्री गुरदित्ता गए बन अखेर को खेलत पाए। कहते एक दिन बाबा गुरदित्ता जी शिकार खेडन गए। निकस्यो सूकर चलियो पलाए। गुरसुत देख तुरंग धवाई। अगों एक वड्डा जंगली सूर निकलिया और जंगली सूर आप जी ने वेखे होणगे बड़ी तेज भजदे ने। उन्होंने वेख के बाबा गुरदित्ता जी ने घोड़ा भजाया तेज करके। गए दूर लो सब हट रहे। पहुँचो गयो ना श्रम को लहे। अगे दूर तक पीछा करते हुए सूर के पिछे गए। बाकी दे साथी पिछे रह के किसी तो पहुँचा नहीं गया। घोड़ा तेज भजाया सूर तेज भजदा सी। एक बालू हसना तह गयो। सतगुरु नंद बिलोकत भयो। बाकी तो घोड़िया के नाल भी पिछे नहीं पहुँच सके पर भाई बालू हसना ये नंगे पैरी भजन वाला बाबा गुरदित्ता जी ने वेख्या तो मेरे नाल ही है। कला हसना ही नाल रह गया बाकी सारे पिछे रहे। अधिक जान सेवा हर खाए। टोपी बख्श दई तिस थाए। उत्थे बाबा गुरदित्ता जी बड़े खुश होए तो इनकी सेवा वेख के बाबा गुरदित्ता जी ने अपनी टोपी इनू दे दी क्योंकि ये टोपी श्री चंद जी ने दी सी। वो टोपी जी अपनी है अगे बख्शिश पाई बालू हसने कर दी। लेकर सिद्ध शगत को पाए। भयो ज्ञान मन आनंद पाई। बस वो टोपी सिर ते रखण दी देर सी। गुरु दियां बख्शियां हुई शक्तियां पहलों भी बड़िया सन पर हुण सिद्धियां भी आ गई रिद्धियां भी आ गई। ज्ञान जिहड़ा आत्मक ज्ञान है वह भी हो गया। हत्यो कोल सो आन उठाए। पुर करतार बिखै चले आए। जिहड़ा सूर बाबा गुरदित्ता जी ने मारिया कहते वो चुक लिया तो चल के करतारपुर आए। सगल प्रसंग सुनायो गुर को। बख्शिश करे प्रेम पिख उर को। ते बाबा गुरदित्ता जी ने सारा प्रसंग आके सुनाया कि ये तुहाडा सिख भाई बालू हसना कला हसना ही नहीं तो उड्डना भी है। इन्नी तेज घोड़ा भजाया। घोड़े वाले मेरे साथी पिछे रह गए पर फिर भी मेरे नाल ही पहुँचे। उत्थे गुरु साहब ने बख्शिश की। श्री हरगोबिंद भये प्रसन्न। सबनु सुनाए बखान बदन। जदों सारी गाथा गुरु साहब जी ने सुनाई गुरु साहब जी प्रसन्न होए तो धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सारे सुना के खुश होंदे हुए बचन कहे। अब तेरे पूरी भई सेवा। करे रिजावण मोह गुरुदेवा। सतगुरु कहते हैं भाई बालू हसनिया तेरी सेवा तेरी काल थाई पैगी सफल होगी। तेरी सेवा पूरी होगी। बैठो भजन करो प्रभ केरा। जन्म मरण काट्यो अब तेरा। भाई हसना जी हुण एक थां ते बैठो टिको। सतनाम वाहिगुरू जपया करो भजन करया करो। गुरु ने कृपा की तेरा जन्म मरण कट दिता। ले गुर खुशी द्वार थिर रहियो। रात दिवस हार सिमरन लहियो। ये गुरु साहब की खुशी लैके ना गुरु साहब जी क्या टिक जो। ये टिक गया दरवाजे के विच जिवें दरवाजा जिवें थंब गड्ढिया हुंदा इवें खलो गया। खलो ही गया थंब की तरह गड्ढिया ही गया। दिन रात सिमरन करदा है। इम श्री हरगोबिंद कृपाला। करे उदाहरण सिख विसाला। इस तरह सतगुरु जी ने कई दिन बाद जदों देखा तो फिर कृपा की। सतगुरु कहते हैं भाई बालू टिकण का मतलब ये नहीं शरीर को दुख देना। सहज अवस्था विच रहो। चल फिर भी जे भजना तो भज भी पर टिक के सिमरन कर। इस तरह गुरु साहब ने उधार किया। गुरमत का सिद्धांत समझाया। बैठे हुते दीवान मझारे। पैंद खान आयो बल भारी। इस तरह एक दिन सतगुरु जी दीवान दे विच सजे हुए ने। दीवान सजिया हुआ है। पैंदे खा चल के आए जिंदा बड़ा शरीर उच्चा लंबा बड़ा बल है। हाथ जोर हरकत होए कहे। सुत जन्म्यो तुम करना लहे। पैंदे खा हाथ जोड़ के पहलों नमस्कार की फिर बड़ा खुश सी कि सतगुरु जी तुहाडी किरपा हुई घर विच पुत्र ने जन्म लिया। निज रसना ते नाम बखानो। जीवत रहे दास निज जानो।
सतगुरु जी मेरा पुत्र आप जी की किरपा नाल होया है, अपनी रसना दे नाल इहदा नाम रखो, असीस बख्शो, जिवदा रहे। किरपा ठाण गुर कीन बखान, पैंदे खां को सैदे खान। सतगुरु जी किरपा के घर में आए और उस वेले नां रख दिता, कहते पैंदे खां का सैदे खान है, सैदे खां नां रख दिता। तव सुत को सुत जो उपजै है, हम ते पलटा सो पुन पै है। नाल सतगुरु जी ने किरपा होर कर दी। पैंदे खां तेरे पुत्र तो, तेरे पुत्र के घर अगे जिहड़ा पुत्र होवेगा, भाव जिहड़ा तेरा पोतरा होएगा, वो साडे पासों किसी तरह का बदला भी लवेगा, बदले वास्ते भी आएगा। सुन बिस्मियो कह पैंदे खान, कहाँ बा कह कीन बखान। पैंदे खान ते हक्का बक्का रह गया। सतगुरु के चरण फड़े, सतगुरु जी ये तुसीं किवें दे बचन कर दिते। मैं आप जी का सेवक, आप जी का दास सिख, ते बदले की गल कित्थों आई। तब गुर पढ़ियो नेत है ऐसे, जिसे न मेट सके को कैसे। सतगुरु जी कहते हैं ये नेत, ये होनहार इस तरह होवेगी, इहनूं कोई मेट नहीं सकता। पैंदे खां आउण वाले समय बारे कोई नहीं जानता। जब होए है तब जान्यो जाए, सुन दीवान सगरो बिसमाए। सतगुरु कहते पैंदे खां हुणे चिंता करने की लोड़ नहीं, हले तो 1-2 दिन का तेरा पुत्र है, इहदे घर फिर पुत्र होएगा, फिर जवान होएगा। जदों समा आएगा, जिवें दा बनेगा, जो कुछ होएगा फिर वेख्या जाएगा, फिर जाने जाएगा। तू हुण आनंद दे विच रहो। इत्थे सतगुरु जी ने कृपा की। कवि संतोख सिंह जी ने यह अध्याय भी खत्म किया है। अगला अध्याय नंबर 5वां ये कल तो शुरू करांगे, जिंदे विच धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी के विआह दी तैयारियां होणगियां। आओ होईयां भुल्लां दी खिमा, 1-2 वारी रसना नूं करिए पवित्र जी, फिर समाप्ति है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।